So now in this chapter, chemical effects of electricity, we have already read about the ions, electrolytes, non-electrolytes, electrolysis, electrodes and electrolytic cell और the voltameter. ठीक है, तो ये सब हम अपना अच्छे से कर चुके हैं. Next is effects of electric current. An electric current can produce the following effects. अभी बताया मैंने आपको, जैसे heating effect, magnetic effect, chemical effect. All these three effects can be seen whenever the electricity passes. In class 7th, we have already studied the heating effect and the magnetic effect, and it is produced by the flowing of electric current. So today now we are studying about the chemical effect. Now, what is chemical effect of electricity? When an electric current is passed through an electrolyte, the chemical reaction takes place. जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो कि this is an a voltameter or electrolytic cell. So here, if you see that whenever the electricity is passed, what happens is the chemical reaction takes place. तो यहाँ पर जब भी कभी ये हमारा electrolyte है, यहाँ पर ये जो liquid है, this is electrolyte. These two are electrodes, cathode, anode, and this is the source of energy, or you can say electricity, battery जिसे हम बोलते हैं. So whenever the electricity is passed into this electrolyte, the electrolysis takes place, and electrolysis means the chemical reaction takes place within this electrolyte or liquid, and this is what is called as the chemical effect of electric current. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो सेटअप देख रहे हो, इस सेटअप में हमने क्या किया, वी हैव टेकन द वाटर. एक एग्जांपल है आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करने का. तो वी टेक अ सेटअप लाइक दिस. ठीक है, वी हैव टेकन वाटर है. ये जो आपको लिक्विड नजर आ रहा है, ये है वाटर, and we have to pass the electricity in this water, or we have connected it with the battery. अब हमें क्या करना है इसमें, we know that water is made up of hydrogen and oxygen. H2O होता है ना वाटर का फॉर्मूला. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो हमारा वाटर है वो बना हुआ है. अब हम क्या करेंगे कि we will pass the electricity through the water. हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, and we will decompose it. Decompose का मतलब we will split हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर को हम स्प्लिट कर देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि वो एक्टिविटी यहाँ पे हमने शो करनी है. तो अब करेंगे क्या हम, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाटर, तो वाटर के अंत को मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर से पास हो, वी विल एड सम अमाउंट ऑफ H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. तो हम इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे. जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम एसिड, बेस या फिर सॉल्ट ऐड करते हैं तो वाटर के अंदर, तो वो और ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है, और डिस्टिल्ड वाटर होगा तो वो कंडक्टिंग हो जाता है. अब हमें यहाँ क्या करना है, एसिड. अब हमने ये क्यों लगाया है, टेस्ट ट्यूब्स हमने टिल्टेड क्यों लगाए हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, सो दैट वी कैन कलेक्ट द गैसेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब कल आपको याद होगा मैंने बताया था कि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोड, और एनोड जो होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. तो हमने क्या किया, as soon as we pass the electricity through it, we will see that यहाँ पर we will see that ions will be formed. That means there will be a splitting of water into hydrogen and oxygen. As soon as the electricity is passed through the water, when electric current is passed through water, it splits up into hydrogen and oxygen, and this is called as electrolysis of water. So when electric current is passed through water, oxygen gas bubbles are produced at the electrode connected to the positive terminal of the battery, and hydrogen gas bubbles are produced at the electrode connected to the negative terminal of the battery. देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लिखते हैं H2O, है ना, हम लिखते हैं ना H2O, H2O. So whatever is written in the first place, that has the
positive and the second one has the negative. हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं, सपोज हम लिख रहे हैं कॉपर सल्फेट, ये चीजें एक्सप्लेन होंगी आपको हायर क्लासेस में। तो कॉपर जो है Cu will have positive charge and SO4 has negative charge when it will split। ठीक है, जब ये स्प्लिट होगा तो हम देखेंगे कॉपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे जो आता है इट हैज पॉजिटिव चार्ज, स्प्लिटिंग के बाद बता रही हूँ मैं आपको। और जो सेकंड प्लेस पे हम लिखते हैं दैट इज नेगेटिवली चार्ज। इसी तरीके से अगर H2O की बात करें तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा आफ्टर स्प्लिटिंग। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे हम कि यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इट विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन H प्लस ऑक्सीजन O माइनस। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिसिटी इज पास एंड स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, तो क्या होता है कि हमेशा जो है अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो हाइड्रोजन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है ना, आपको मालूम है, ये तो सब हमने एक्सप्लेन कर ही लिया था। तो कैथोड पे है हमारा नेगेटिव चार्ज और एनोड पे है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, कैथोड नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब होगा क्या, जो हमारे यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, तो अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव and negative will get attracted to the positive। बेटा बहुत सारी चीजें और भी होती है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे आपके स्टैंडर्ड का समझा रही हूँ, 8th क्लास का स्टैंडर्ड। यू हैवंट रेड मेनी थिंग्स टिल नाउ, तो अभी फिलहाल आपको यही समझना है कि यहाँ पे जब स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा तो हाइड्रोजन जब पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर आप कैसे देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस है, थ्रू दीज बबल्स। आपको ये बबल्स नजर आ रहे हैं, तो दीज आर द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड दीज आर द बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो दिस शोज, और आप इसे कलेक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आप चाहो तो ऑक्सीजन, क्योंकि हेल्प्स द बर्निंग, आप यहाँ पर टेस्टिंग भी कर सकते हो कि ऑक्सीजन ही है। ओके, तो एक इसका केमिकल इफेक्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप कुछ और भी इसमें ले सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस देखने के लिए। सेकंड इसका जो इफेक्ट है हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Now what is electroplating? The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called as electroplating। जब हम कोई भी चीज पर अगर एक मेटल की डिपोजिशन कर देते हैं दूसरे मेटल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप देखोगे यहाँ पर एक सेटअप बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो सेटअप है इसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो लिक्विड लिया है दैट इज कॉपर सल्फेट, एक स्पून लिया है दैट इज मेटालिक स्पून, और यहाँ पर है कॉपर, कॉपर की एक रॉड। ठीक है, जस्ट so there is a diagram in front of you. Now in the process of electroplating, the metal salt solution is taken in a container। ये जो आप लिक्विड देख रहे हो, salt of metal is chosen which is to be covered, coated over another metal. Metal which is to be coated is dipped in the solution and connected with negative pole. Metal for desired coating is connected with positive pole. When electric current is passed through the solution, the metal from the anode is dissolved in the salt solution and deposited over the negative pole, that is cathode. This coating of desired metal is obtained on another metal। देखिए यहाँ पर जब हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक लिक्विड लेते हैं, ठीक है, और वो लिक्विड जो है वही होगा जिसकी प्लेटिंग जो है हमें इसमें करनी है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन अभी आपको कि क्या क्या लेने हैं हम, और जिसकी हमें प्लेटिंग करनी है
वो हम रॉड की फॉर्म में लेंगे और दैट विल बी कनेक्टेड टू द एनोड, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। सपोज हमें स्पून को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है किसी भी एक मेटल से, तो ये जो हम ये जो हम स्पून ले रहे हैं जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, दैट विल बी टेकन एट द कैथोड, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए यहाँ पर ये आपको एक सेटअप दिया हुआ है, हम इसकी बात करते हैं फिलहाल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉपर। अब हम यहाँ पे हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किस पे कर रहे हैं, ये एक मेटेलिक स्पून है, ठीक है, इसके ऊपर हमें कॉपर की प्लेटिंग करनी है। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे जब हम कॉपर की प्लेटिंग कर रहे हैं तो ये जितना हमने डिप किया है उतने पे ही प्लेटिंग होगी, ठीक है। तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारी प्लेटिंग हुई है कि नहीं है, इसलिए हमने इसे हाफ डिप किया है, सो दैट वी कैन इजीली डिफरेंशिएट कि ये जो पार्ट है जो डिप नहीं था ये इलेक्ट्रोप्लेट नहीं हुआ है और ये इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा। अब और क्या करना है, हमने ये हमने लिया इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड की फॉर्म में, और दूसरा हमने लिया कॉपर की स्ट्रिप, ये हमारी कॉपर की स्ट्रिप है, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन है ये भी कॉपर सल्फेट का हमने लिया है। गॉट इट, किस चीज का लिया हमने, कॉपर सल्फेट। ओके, तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पर, अब ये देखेंगे कि यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि हम कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या ले रहे हैं। तो जिस पे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है दैट शुड बी एट नेगेटिव चार्ज यानी कैथोड, और जिसकी हमने करनी है वो जो मेटल है कॉपर स्ट्रिप, दैट शुड बी एट द एनोड पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब होगा क्या, ये हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे ही as soon as we will switch it on, electricity will pass through it, electricity pass होगी, और कॉपर जो है that will be split, वो split हो जाएगा किसमें, Cu प्लस SO4 माइनस, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग टू एक्सप्लेन यू, दैट्स इट, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही हूँ मैं, सिर्फ आपको ये समझना है कि आयन फॉर्मेशन हो जाएगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, कॉपर और सल्फेट जो है दैट विल बी डिसोसिएट, या यू कैन से डिकम्पोज या स्प्लिट कह सकते हो, यानी कि टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब कॉपर के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और ये जो है हमारा इलेक्ट्रोड ये है नेगेटिव चार्ज। अब ये भी आपको मालूम ही होगा कि ये जो जो भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज से की तरफ के साथ कनेक्ट कर रहे हो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर रहे हो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये सब आपको मालूम है। तो जैसे ही ये कॉपर स्प्लिट हुआ ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस। अब इस सॉल्यूशन में क्या है, SO4 माइनस है, ठीक है। अब ये जो है कॉपर स्ट्रिप ये है, ध्यान से सुनेगा इसको, ये कॉपर स्ट्रिप पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट पर है नेगेटिव चार्ज। तो अब ये कॉपर क्या करेगा, दैट विल कम इनटू द सॉल्यूशन टुवर्ड्स द SO4 माइनस। आर यू गेटिंग दिस, यहाँ पर SO4 जो है उससे कनेक्ट होने के लिए, उससे जुड़ने के लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट विल कम इनटू द सॉल्यूशन, but because electricity is passing through it, it will split, and split होने पर क्या होगा, again copper जो है वो that will come into the solution, it will get attracted towards this spoon, and this process will take place for the whole time when we are passing the electricity through this solution. तो इस तरीके से after few hours we will see कि half of this जितना हमने इसे dip किया हुआ है, half of this portion of the spoon will be electroplated with the copper sulfate. इतना portion जो dip है इस solution में वो उसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग हो जाएगी जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो अब जब आप बाद में इसको ऑफ करके निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो स्पून है इस स्पून का जितना पोर्शन सॉल्यूशन के अंदर डिप था वो तो इलेक्ट्रोप्लेट हो गया कॉपर का, और बाकी जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है दैट विल बी मेड अप ऑफ स्टील ओनली, वो स्टील का रहेगा, और ये स्टील के ऊपर प्लेटिंग हो जाएगी यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी कॉपर की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से एक और यहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ पे हमने लिया है AgNO3। अब यहाँ पर AgNO3 जब स्प्लिट होगा तो Ag जो पहले लिखा है दैट विल बी हैविंग प्लस, NO3 जो है वो है नेगेटिव चार्ज, उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से, और Ag, क्योंकि ये जो स्पून है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव चार्ज, तो Ag गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर अब देखो जब Ag यहाँ से इसको इलेक्ट्रोप्लेट करेगा तो इस सॉल्यूशन में Ag की जो है वो कमी हो जाएगी, और ये NO3 जिसपे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से ये जो हमारा ये जो हमने लिया है इलेक्ट्रोड पे Ag का वो ली है, क्या बोलते हैं इसको, रॉड ली है, तो उसमें से जो Ag, ये प्योर Ag है, Ag का मतलब सिल्वर होता है, और NO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ से Ag प्लस जो है यानी कि Ag के जो Ag यानी कि सिल्वर के जो आयंस है दैट विल कम इनटू द सॉल्यूशन, एंड अगेन दैट विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग ऑन द स्पून। जब भी हम जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहेंगे वो डिपॉजिशन होता रहेगा स्पून के ऊपर, ठीक है। और जितनी भी थिक लेयर हमें चाहिए हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते रहेंगे, वो डिपॉजिशन होता रहेगा। तो जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी थिन या कितनी थिक लेयर हमें चाहिए। जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो डिपॉजिशन होता रहेगा। जब हमें डिपॉजिशन हो जाए पूरा, या हमें थिक लेयर मिल जाए या थिन लेयर, जैसा भी हमारी डिजायर है, वो उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देंगे, तो वी विल फाइंड कि जितना डिप है वो प्लेट हो गया है, इलेक्ट्रोप्लेट हो गया है, और बाकी जो पोर्शन है वो ऊपर वाला वो डिप जो हमने डिप नहीं किया हुआ था वो इलेक्ट्रोप्लेट नहीं हुआ। This is what is called as electroplating of metals.